हो जी, हाँ जी 30 ईयर पूरे हो रहे हैं। या 11 जनवरी 91। और पता नहीं चलेगा। इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी आई वुड से। ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ? ਮਿਕਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਫੀਲ ਦੈਟ ਯੈਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਫੀਲ ਫਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਿਲ ਫੀਲ ਲੌਂਗ ਵੇ ਟੂ ਗੋ। ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਫੀਲ। फॉर मी आई थिंक द जर्नी इज येट टू बिगन। कि रिलेशनशिप्स क्या है आपके लिए? व्हाट 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 डज इट सिग्निफाई इन लाइफ? मेरी वजूदगी और आइडेंटिटी ही मेरे ख्याल में इसके ऊपर है। और अगर आप पूछोगे ना मुझे कभी भी मेरा सबसे ज़्यादा फियर क्या है, लूजिंग अ रिलेशनशिप। मैं समहाउ आज अगर मेरी वजूदगी आइडेंटिटी है रिश्तों की बुनियाद के सिर पे, और मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ वन शुड बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। you're a person that takes decision from the heart. माई लाइफ। हार्ट की बात करते, दिल की बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज मेड आपके बचपन में बनता। तो लेट्स अंडरस्टैंड योर चाइल्डहुड। मतलब आप बड़े हो, आज हम ये बात कर रहे हैं 30 ईयर्स ऑफ हटेक हो रहा है, तो ये ज़रूरी है कि आपका दिल कैसे बना, आपकी वो फीलिंग्स कैसे बनी। तो कुछ बताओ आप, वेयर वर यू बॉर्न, क्या जर्नी रही, मतलब कहाँ आपने स्कूलिंग की, कुछ उसके बारे में बताओ। Well, I was born in Kolkata. That is where I spent my childhood. My father was in service. He was working for an English firm, and his first posting was in Calcutta, and that's where I was born. He had a transferable job. I started my schooling from Calcutta as a kindergarten. I was in South Point School in Calcutta, and incidentally, I also slipped that my father made 2 shifts from Calcutta to Madras, Madras to Calcutta, again to Madras, and then finally to Chandigarh. So there was a lot of shifting, but in that process, I did my schooling from South Point School. Then I shifted to Frank Anthony in Calcutta. From there, then I was shifted to Madras. So in Madras, again, I did my part of a schooling. Sorry, Frank Anthony was in Madras. And then, of course, I came back to Chandigarh. So Chandigarh did my higher studies, got into prep at Khalsa College, but then again we shifted to Delhi. So Delhi at that time was in 10+2, so went back to schooling. So my 12th was in a school. Finally, my college was in Delhi. So that's how life has been with me at every stage. I studied from Bhagat Singh College. I'm a commerce graduate, as you're aware. So I did my BCom in 83. टुडे वी आर 30 ईयर्स ऑफ हटेक ग्रुप की बात करते हैं। सो वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम? I came to Chandigarh in 1987 as a representative of few companies. I was basically a resident representative. There were 2 companies whom I was representing as a resident representative. One was Parry and Company. The second company was Indian Transformers Limited. For marketing their transformers. So basically, as a salesman, let me be very precise, that's how I started my career. Put together, both these companies used to pay me about 2,000 rupees in totality per month. They gave me 2 options. One was as a branch in charge, where they were ready to pay me some kind of a respectable amount. So that was my first opportunity. My first interview of my life was in Calcutta. And there they were looking for a person to promote this product of MEI for Punjab. And that's how I, applied for the interview and I was, selected. So they offered me a retainership where they offered me 1,500 rupees per month plus 2.5% commission for all the sales.
somehow I got inspired with that 2.5%. I said इतनी मेहनत करूँगा उसमें 2-2.5% कमाऊँगा, मुझे उसमें कुछ ज़्यादा एक वो लिखा कि भी this is more I think opportunity for me to take advantage of. So Indian Transformers Limited was paying me about 500 rupees per month, plus again 1% commission. At that time, of course, the transformer I used to sell was about a 50 kVA, 25 kVA. 20-25 हज़ार का ट्रांसफॉर्मर बिक जाता था, तो आई यूज्ड टू बी दैट्स हाउ देयर लाइफ स्टार्टेड ऑफ. फॉर्चून चेंज एक अपॉर्चुनिटी ऐसे मिल गई कि MEI और पैरीज स्प्लिट कर गए, दे पार्टेड वेज, एंड पैरी gave them a list of preferred dealer network because Perry had a whole dealer network pan India. I was the only one among the resident representative who was named in that list of dealers. जिसकी आप एक लेटर भी दिखा रहे थे अभी. एग्जैक्टली. और बड़ी सरप्राइजिंगली मुझे MEI से चिट्ठी आ गई. दिस वॉज इन 1990 बिकॉज जब ये पार्टिंग होगी MEI की चिट्ठी आ गई मुझे कि भी यू हैव बीन इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यू in Bangalore for appointment of dealership, and I was selected as a dealer. So the whole existence of Amtech itself is a story. तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे अभी भी याद है जो MD की जो PA थी, उसने जब मेरी बारी आई तो मुझे उसने पूछा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है. That is where it hit me. Company. I said the letter was in my name. So then second time she was little rude with me. कहते हैं टाइम नहीं है, जल्दी बोलो कंपनी का नाम. मैं कहा मैडम 2 मिनट में आता हूँ. एंड आई गॉट लिटिल पैनिकी बिकॉज आई डिडंट हैव अ कंपनी एट दैट टाइम. एंड आई वेंट टू अ वॉशरूम. टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, 2 people I remembered. One was Vaiguru, God. Second, my dad. कि Baba, what do I do now? They are asking me name of a company which I don't even have. And while remembering my father, suddenly it struck me that as you know, my father was Mr. Amrik Singh. So AM from my father I picked up. Hartek TK I picked up. And the only thing which came in my mind was Amtech. उसके बाद फिर सोचा ये Amtech आगे क्या करूँगा. सेल्स का काम करेंगे, सर्विस करेंगे, और Amtech सेल्स एंड सर्विस माइंड में आया. और ये उनके कॉन्फ्रेंस रूम के वॉशरूम में बैठ के रिमेंबरिंग माई फादर where I conceived the name of this company. So I went back to her and I said, ma'am, Amtech Sales and Service नाम. So that is how Amtech came into being. वॉशरूम में जाके कंसीव की, वॉशरूम और Absolutely. भगवान का नाम लिखी. Absolutely. Amtech Sales and Services का क्या विजन था, क्या करना क्या था? इलेक्ट्रिकल कि आप ऑलरेडी डीलर MEI ने आपको बना दिया था, तो क्या विजन था उस टाइम पे? आज से एग्जैक्टली 30 साल पहले की बात करते हैं, तो क्या करना क्या था Amtech Sales में? एक चीज़ तो I was blessed to this fact that MEI was a very high quality branded product. ITL also was one of the only ISI marked transformers in the country. इस 2 प्रोडक्ट ने मुझे एक पहचान और मुझे मेरा एक विजन क्लियर कर दिया कि I am going to relate only with high quality products. So having these 2 products, the first thing which came to my mind was why not I create a combo of 11, because both were 11 kV. One side I had an oil circuit breakers OCPs of 11 kV, the other way there was a transformer. तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इनको कॉम्बो बनाऊं और कॉम्बो बना के इंडस्ट्री को ऑफर करना शुरू करूं. बिकॉज मेरे लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज था. एक, मेरे पास पैसा नहीं था, कंपनी बना रही थी, आई हैड नो मनी, आई बिलोंग टू अ सर्विस क्लास, एंड बीइंग अ लोनर इन द सिटी, द बिगेस्ट चैलेंज वाज that there were established electrical players in this region. 7 sectors Madhya Marg, 26 sectors Madhya Marg, they were established players who had money, power, everything. They had the market. So merely that was a struggle, and I knew one thing very clearly कि मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा to make my mark or to make my place. So this was the only part which I could make it. One, Deravasi, Laluru, ये अब ब्रिंगिंग इंडस्ट्रियल बेल्ट आने शुरू हो गए. तो सब बिल्कुल नए आए थे 90s में. अगर आप इफ़ यू गो बैक, चंडीगढ़ इंडस्ट्रियलाइजेशन का एकदम शुरुआत हुई थी एकदम. और मोस्ट ऑफ दीज पीपल यूज्ड टू कम टू सेक्टर 7 एंड 26 फॉर परचेजिंग देयर इक्विपमेंट. मुझे एक बात क्लियर हो गई कि अगर ये लोग चंडीगढ़ शहर में पहुंच गए, सेक्टर 7 और सेक्टर 26, आई एम गॉन, मेरा कोई चांस नहीं है. तो मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी था. आई हैड अ बाइक
जो मैंने अपने कज़न से उधार से लिया था, बिकॉज आई कुड अफोर्ड अ बाइक. दैट बाइक इज इंस्टेंटली स्टिल विद मी, PCS 5815. तो हीरो होंडा होती थी मेरे पास. हीरो होंडा पकड़ के मैं तेरह बजे निकल जाता था सवेरे सवेरे. बंजर सब ज़मीन होती थी, वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री थी नहीं कुछ खास. और फिर आई यूज्ड टू लुक फॉर छोटी छोटी गलियों में कि कहीं ईंटों का कोई ढेर पड़ा है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है. तो आई यूज्ड टू गो एंड मीट दोज हूएवर द सिक्योरिटी है, या कई बार कोई ओनर आप ही बैठा होता था कंस्ट्रक्शन करा रहा था, तो उनको पास जाके मैं अपना इंट्रोडक्शन करता था. सर मैं ऐसे से हेमटेक से आया हूँ, मैं HT इक्विपमेंट में डील करता हूँ, आपको मैं ट्रांसफार्मर दूंगा, आपका सारी रिक्वायरमेंट कर आपको दूंगा. इट वॉज ट्राई अगेन अ डेस्परेशन एक्ट कि किसी भी तरह मैं इसको यहीं पे कन्विंस कर दूँ कि इसको जो इसकी नीड्स है इसकी यहाँ मैं फुलफिल कर दूँ. रेस्ट वॉज आई थिंक डेस्टिनी और ईश्वर की कृपा भी रही है. जस्ट अ मैटर ऑफ चांस. लोग मिलते रहे, दे स्टार्टेड हैविंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन मी. एक ने ऑर्डर दिया, उसका रेफरेंस मिला, उसको अच्छी सर्विस. आपको पहला ऑर्डर याद है अपना? एमटेक सेल्स का मेरा जो सबसे पहले ऑर्डर था वो डेरा बसी का एक SR फोर्जिंग कंपनी थी. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय फ्यू ऑर्डर्स. अगर मैं एग्जैक्टली अगर बोलूँ, सच में बताऊँ, आई वुड नॉट रिमेंबर, बिकॉज 3-4 ऑर्डर्स मेरे इकट्ठे आई हैड पिक्ड अप. इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री चुनने का जो अपने एमटेक सेल्स एंड सर्विस वाज इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग फर्म कि कोई भी इंडस्ट्री आ रही है उसको एक इलेक्ट्रिकल का सामान. आपका ग्रेजुएशन बीकॉम में थी. आपका ऐसा आपको क्या, हाउ आर यू सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री? आपको क्या लगा था कि पावर सेक्टर में आके आपकी कोई उसमें ट्रेंड नहीं थी, या आप हाउ डिड यू चूज दिस इंडस्ट्री? कि आपको कितना बिलीव था 30 साल पहले? मुझे कभी अपने आप को ये महसूस ही नहीं हुआ कि दैट मैं एक नई बिज़नेस या एक नई इलेक्ट्रिकल का कोई ऐसी चीज़ पकड़ रहा हूँ. बिकॉज मैंने पहले भी आपको ये बोला है कि भी माय फादर वाज इन इलेक्ट्रिकल कंपनी. तो बचपन से मोटर, ट्रांसफार्मर, ये सब चीज़ें तो सुनते रहते थे. सो आई ग्रू अप इन इलेक्ट्रिकल फैमिली. माय फादर वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड आई थिंक वो एक कंफर्ट जोन मुझे बचपन में वो मिलता रहा. कानों में वो चीज़ें सुनते रही. सो जब मैं अपने खुद बिज़नेस में आया और जब ये चीज़ें आई, मुझे लगा कि आई कैन रिलेट विद दिस प्रोडक्ट. ये कोई अलग चीज़ नहीं है. तो अभी आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, 91 पे हैं, अभी 92 भी आने वाला है. तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, काम स्टार्ट हो गया, कॉन्फिडेंस है. फिर कैसे क्या काम चल रहा है, कैसी जर्नी फिर आगे बढ़ता रहा काम? आपने पता नहीं कभी एमवे का कभी नाम सुना हो? उन दिनों में लेट 90s में एक न्यू कंसेप्ट आया था एमवे, जो कभी वो प्रोडक्ट बोलते नहीं थे. दे यूज्ड टू कॉल नेटवर्क मार्केटिंग. मैंने ये कभी रियलाइज़ नहीं किया, बट मेरा ज़िंदगी की जो शुरुआत वॉज बेसिकली ऑन नेटवर्क मार्केटिंग. एंड व्हाट वाज दिस नेटवर्क मार्केटिंग? आप एक कस्टमर लो, उसको आप सर्विस दो, उसके बाद उसके 2 बनाओ, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16. मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही हुई. मैंने एक कस्टमर जीता, उसको इतना अच्छा सर्विस दिया, उसने 2 जगह रेफरेंस मेरा दिया, 2 के मेरे वो 4 हुए, 4 के वो मेरे 8 हुए. कारवां चलता रहा, मुझे पता ही नहीं चला. एंड सडनली विद इन 3-4 years आई मेड माई ओन मार्क टू द एक्सटेंड वॉट आई वॉज आई थिंक कैपेबल ऑफ. तो अभी 4-5 साल आप कह रहे हो एकदम नेटवर्क बन रहा है, तो कोई चैलेंजेस आए कि बहुत बढ़िया रोज़ी चलता रहा? तो अभी इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग डिवीज़न कंपनी का फॉर्म हो गया, तो अभी हम 5 साल के बाद आप बोल रहे हैं बढ़िया, कोई चैलेंज उस टाइम पे आए? ट्रेडिंग की बात अगर आप करते हो, शायद उसमें एमटेक की जो ट्रू मीनिंग जो हुई वो 94-95 में हुई, जब मैंने एक कंप्लीट HT प्रोफाइल मैंने तब तक बना लिया था 5 साल में. जबकि मैंने उस टाइम एक कंपनी आज भी है सिक्योर मीटर्स, 94 में उनकी डीलरशिप मैंने ले ली. दे वर मैन्युफैक्चरिंग मीटर्स. CTPT की कंपनी की डीलरशिप मैंने ले ली और इनका कॉम्बो मैंने इंडस्ट्री में देना शुरू किया. आई वॉज द फर्स्ट वन टू ऑफर एन HT कॉम्बो इन 1994 टू द इंडस्ट्री. दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ एमटेक कि जब मैं इंडस्ट्री के पास जाता था, उनको मैं कहता था कि सर आप मेरे पास आइए. सिंगल विंडो कंसेप्ट मैंने उस टाइम अपना एक नया एक आइडियोलॉजी बनाई, जो मे बी आज तो बहुत कॉमन हो गया पिछले 15 साल से, बट मेरे को अभी भी याद है 94 में I went to the industry and I used to tell those industrialists, sir, I'll give you a single window concept. कहते वो क्या होता है? मैं कहा सर पूरा HT का प्रोफाइल, राइट फ्रॉम द CTPT, मीटर, ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, आपको मैं एक कॉम्बो में पूरा आपको दूंगा. सर ये मेरा प्राइस है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट सोल्यूशन. उनको ये चीज़ ना पसंद आई.
कहता है यार मैं ट्रांसफर में इधर से लेता हूँ, ब्रेकर मैं कहीं और से लेता हूँ, सिटी पिट के मुझे उधर जाना पड़ता है, तुम मुझे एक वन सिंगल शॉट में। आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हर्टिंग। 97-98 तक ऑनेस्टली मेरी पहचान नहीं थी, नाइदर पीपल न्यू मी। ठीक है, ऑर्डर्स ले रहे थे, काम हो रहा था। जब आप स्क्रैच से, जीरो लेवल से आप जब काम शुरू करते हो ना, एवरी ईयर देयर इज़ अ ग्रोथ। क्योंकि आपने 5 लाख का सेल किया एक साल में, उसके अगले साल में आपने 8 लाख करते, तो 8 लाख तो ग्रोथ ही है ना। तो ऐसे करते करते 25-30 लाख तक पहुंच गया मैं, साल के मेरी सेल हो जाती थी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि यार 25 लाख की मैंने सेल कर दिया। 97 में मुझे सबसे पहले ब्रेक मिला। ब्रेक मुझे मिला सो कॉल्ड, मैं जो पंजाब का उसको वो कहता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और पंजाब का कॉर्पोरेट वर्ल्ड कौन था? वर्धमान, नाहर, योर पंजाब कॉनकास्ट, ये जितने जो कंपनीज थे, जो स्टील के और टेक्सटाइल के जो बड़े बड़े जो प्लांट थे, इन लोगों ने मुझे इनफैक्ट एक्सेप्ट किया। तब तक एमटेक का कुछ नाम 7-8 साल में मैं बना चुका था। और दिस वॉज अ वेरी बिग गेम चेंजर फॉर पर्सन लाइक मी एंड फॉर एमटेक। कि मुझे आज भी याद है वर्धमान जैसी कंपनी का 97 में जब मैं उनके गेट में एंटर कर रहा था, आई टच द फीट ऑफ दैट ग्राउंड एंड एंटर देयर प्रीमिसेस। इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी।